Hello and welcome. In this lecture, we will discuss on memory management requirements. This is lecture number 20. Memory management is mainly concerned with the allocation of main memory to requesting process. No process can ever run before a certain amount of memory is allocated to it. The overall resource utilization and other performance criteria of a computer system are largely affected by the performance of the memory management module. While surveying the various mechanisms and policies associated with the memory management, it is helpful to keep in mind the requirement that memory management is intended to satisfy. So these requirements are as following. First is transparency, second protection, third is sharing, fourth is relocation, and fifth is logical organization, and last physical organization. Okay, so let's start with the first term, why memory management is required. So memory management is mainly concerned with the allocation of main memory to requesting process. No process can ever run before a certain amount of memory is allocated to it. The overall resources utilization and other performance criteria of a computer system are largely affected by the performance of the memory management module, right? But actually we want to say memory management is mainly concerned with the allocation of main memory to requesting process. मेमोरी मैनेजमेंट हमेशा इस बात पर कंसर्न होती है कि किसी भी रिक्वेस्टिंग प्रोसेस को हम कितनी मेमोरी प्रोवाइड करते हैं. रिक्वेस्टिंग प्रोसेस की जितनी डिमांड होगी, जितनी प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होगी मेमोरी के लिए, उतनी प्रोसेस को उतनी मेमोरी हमें प्रोवाइड करना है, और यही मेमोरी मैनेजर का काम भी है, राइट. सो मेमोरी मैनेजमेंट हमेशा इस बात पे कंसर्न करती है कि मेमोरी का एलोकेशन कितना होगा किसी भी रिक्वेस्टिंग प्रोसेस के अकॉर्डिंग. Okay, no process can ever run before a certain amount of memory is allocated to it. As we know that process can't do anything without the memory, right? So process कुछ भी नहीं कर सकती, उसे certain amount of memory हमें allocate करना होगा, तभी वो process execute होगी. The overall resource utilization and other performance criteria of the computer system are largely affected by the performance of memory management module. बिना मेमोरी के हम किसी भी टाइप के परफॉर्मेंस हम कैलकुलेट नहीं कर सकते. प्रोसेस को मेमोरी ही प्रोवाइड नहीं होगी तो हम उसके परफॉर्मेंस का किस तरह से क्राइटेरिया बनाएंगे. तो हम कह सकते हैं कि मेमोरी मैनेजमेंट मॉड्यूल बहुत इसेंशियल पार्ट है. बिना मेमोरी मैनेजमेंट के या बिना मेमोरी एलोकेशन के हम किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का परफॉर्मेंस या उसका कोई क्राइटेरिया या किसी भी रिसोर्स का यूटिलाइजेशन हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि ओवरऑल रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन और परफॉर्मेंस उसकी मेमोरी ही डिसाइड करती है. नॉट ओनली मेमोरी, बट मेमोरी इज़ वेरी इसेंशियल पार्ट एंड इट इज़ वेरी मेजर पैरामीटर विच आइडेंटिफाई हाउ मच वी कैन यूटिलाइज द रिसोर्सेज एमंग्स दैम, राइट. हमारे पास यदि कई सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं बट हमारे पास मेमोरी बहुत लो है, सो हम उस रिसोर्स का यूटिलाइजेशन बेटर वे नहीं कर सकते. इसलिए ऐसा लिखा हुआ है कि द ओवरऑल रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन एंड अदर परफॉर्मेंस क्राइटेरिया
of a computer system are largely affected by the performance of memory management module. So memory is very important in a computer system. ये कई सारी पेरिफेरल डिवाइसेस पे उनकी परफॉर्मेंस पर अफेक्ट करती है. Requirements, these requirements are, now why we need a memory management, so let's discuss on it. Why we need memory? Actual requirements of memory. First, we want transparency. Transparency. What does it mean? The transparency means the memory manager should be invisible to the user, that is the programmer. प्रोग्रामर को इससे कुछ लेना देना नहीं होता है कि उसके प्रोग्राम को मेमोरी कहाँ मिली हुई है. उसके प्रोग्राम को मेमोरी मिलनी चाहिए. दैट इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग्स. where it assign a memory, where it allocate a memory, it doesn't required for the programmer. So transparency is required for programmer. He or she should not need to be aware of the existence of memory handler. A process running on a computer should not be aware of the sharing of memory between processes, right? So transparency should be there. Let's write it. What is transparency? The memory manager should be invisible to the user, that is the programmer. He or she should not need to be aware of the existence of the memory handler. क्योंकि प्रोग्रामर का ये सब्जेक्ट नहीं होता है कि वो मेमोरी एलोकेट करे या उस मेमोरी को हैंडल करे. So that is the task of memory manager, to allocate a proper memory to a programmer's program, right? So that should be transparent in between users and programs. A process running on the system should not be aware of the sharing of memory between processes. What does it mean? जो प्रोसेस सिस्टम पे रनिंग है उसे भी इस बात के लिए इस मैटर नहीं होना चाहिए कि उस प्रोसेस के थ्रू जितनी मेमोरी एंगेज हो रही है वो मेमोरी किसी दूसरी प्रोसेस के थ्रू भी एलोकेट हुई है. अ प्रोसेस रनिंग ऑन द सिस्टम शुड नॉट अवेयर ऑफ द शेयरिंग ऑफ मेमोरी बिटवीन प्रोसेसेस. यदि एक प्रोसेस किसी मेमोरी को एंगेज करती है वही मेमोरी किसी दूसरी प्रोसेस को भी एंगेज किया जा सकता है, राइट? बट देयर आर सम प्रोटोकॉल्स. हम ये चीज़ कैसे यूज़ करेंगे, हम इस कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करेंगे, किस तरह से लेयर बनेगी मेमोरी की, किस तरह से प्रोसेस की लेयर बनेगी वन बाय वन, और ये काम कैसे होगा, दैट इज़ अनदर पार्ट, बट वी कैन डू. एक प्रोसेस जो किसी मेमोरी में चल रही है उसी मेमोरी को शुड नॉट बी अवेयर. इससे प्रोसेस को तो जो प्रोसेस ऑलरेडी रनिंग है सिस्टम में उसे उस सिस्टम से नहीं, इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि उसकी मेमोरी किसी दूसरे प्रोसेस के थ्रू भी शेयरिंग पर है. तो शेयरिंग ऑफ मेमोरी doesn't affect to the processing of other process, right? That is the main transparency. Okay, now the second term is protection. We want protection. So when we required a memory,
After allocating a memory to a process, we want protection of our data structure in that memory location, right? A process should be protected against unwanted interference of any other process, memory belonging to a process should not be illustrate the address should not be accessible from other process without permission. Now, in the second parameter, we need a protection. So at the time of allocating a memory to a process, after allocating memory to a process, we need a protection. That means we don't want any interference during the execution of my process or my program. So process should be protected against unwanted interference of any other process. यदि मेरी प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू एग्जीक्यूट हो रही है, ऑपरेटिंग सिस्टम ने यदि किसी मेरी प्रोसेस को मेमोरी एलोकेट की है, तो उस मेमोरी लोकेशन पर किसी दूसरी प्रोसेस को एलोकेशन नहीं होना चाहिए। यदि उस मेमोरी पर किसी दूसरी प्रोसेस अप्रोच लगाती है तो वो अनवांटेड प्रोसेस होगी और इस तरह का अनवांटेड इंटरफेरेंस से हमें हमारी प्रोसेस को प्रोटेक्ट करना होगा। सो मेमोरी बिलोंगिंग टू द प्रोसेस शुड नॉट बी एक्सेसिबल फ्रॉम अदर प्रोसेस। बिना परमिशन के किसी एक प्रोसेस जो किसी मेमोरी को यूज़ कर रही है, किसी दूसरी प्रोसेस के थ्रू वह मेमोरी एक्सेस नहीं होनी चाहिए। बिना परमिशन के किसी भी एक मेमोरी लोकेशन पर किसी दो प्रोसेस का एग्जीक्यूशन नहीं होना चाहिए, राइट? दैट इज़ द प्रोटेक्शन इन टर्म्स ऑफ मेमोरी, कि एक मेमोरी लोकेशन पर एक ही प्रोसेस का एग्जीक्यूशन चले और उसी मेमोरी लोकेशन पर यदि किसी दूसरी प्रोसेस के कॉन्टेक्स्ट को एग्जीक्यूट होना है तो दूसरी प्रोसेस पहले परमिशन ले, देन उसके बाद अपना कॉन्टेक्स्ट जो भी उसका टेक्स्ट है, डेटा है, स्टैक है, तीनों रीजन उस मेमोरी लोकेशन पर एग्जीक्यूट करें, राइट? सो दैट इज द प्रोटेक्शन। अ प्रोसेस शुड बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट अनवांटेड इंटरफेरेंस ऑफ एनी अदर प्रोसेस। मेमोरी बिलोंगिंग टू अ प्रोसेस शुड नॉट बी एक्सेसिबल फ्रॉम अदर प्रोसेसेस without permission. Now third parameter, which is again very essential, sharing. There will be need for sharing memory between processes if a number of processes are to execute the same code. It would be better to use a single copy of that code instead of letting each process having its own copy. That means there will be need for sharing memory between processes. ऐसा हो सकता है, ऐसी रिक्वायरमेंट आ सकती है कि हमें अपनी मेमोरी
को शेयर करना पड़े। एक मेमोरी किसी दो प्रोसेस के बीच में शेयर होगी, इसी को बोला जाता है शेयरिंग। इफ़ अ नंबर ऑफ प्रोसेसेस आर टू एग्जीक्यूट द सेम कोड, यदि कई सारे प्रोसेसेस किसी कॉमन कोड को एग्जीक्यूट करना चाहती है तो इट वुड बी बेटर, ये बेटर होगा कि किसी सिंगल कॉपी उनके बीच में शेयरिंग पर रखें, instead of letting each process having its own copy. Take me example. Let's take example here. Like process 1 required data 1, process 2 also required data 1. So instead of doing this, process 1 required data 1, so do not associate the identical copy of separate data 1 to process 2, right? Instead of doing this, you can do in that way also. जैसे आप डेटा 1 जो कि प्रोसेस 1 की रिक्वायरमेंट है, प्रोसेस 1 डेटा 1 को एक्सेस कर रहा है, प्रोसेस 2 की भी रिक्वायरमेंट है डेटा 1 को एक्सेस करने की, तो आप इनकी एक आइडेंटिकल कॉपी दे सकते हैं, प्रोसेस 1 एंड प्रोसेस 2, और आप इन्हें बीच में इस तरह से डेटा 1 शेयरिंग पर कर सकते हैं, इन दैट वे, right? Now process 1 and process 2 both having same data, that is data 1, but in this case both have its own data 1, so हमें एक कॉपी यहाँ बनानी होगी, एक कॉपी यहाँ बनानी होगी, that is the waste of memory. तो शेयरिंग का जो कंसर्न है, शेयरिंग ऑफ मेमोरी, दैट मीन्स हम इस मेमोरी लोकेशन को जिसमें डेटा 1 का कॉन्टेक्स्ट लोड है, इस मेमोरी लोकेशन को हम शेयर करते हैं प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2 के बीच में, राइट? सो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस वी कैन डू इन दैट वे. दिस इज एक्चुअली कॉल्ड शेयरिंग ऑफ मेमोरी. Okay, now fourth point is relocation. Due to the sharing capabilities of a multi-programming operating system, the programmer cannot tell where and who, where and how much memory that could be used by the program. The programmer does not know if there are any other programs taking memory space. It must therefore be the memory manager's job to place program into main memory. When loading programs, the memory manager must determine where the different part of the program shall be located in main memory.
Now the relocation is due to sharing capabilities of a multi-programming operating system. The programmer cannot tell where and how much memory that could be used by the program. शेयरिंग कैपेबिलिटीज़ के कारण और मल्टी प्रोग्रामिंग में शेयरिंग कैपेबिलिटीज़ के कारण ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी प्रोग्रामर को ये नहीं कह सकता कि उसके प्रोग्राम को मेमोरी कहाँ एलोकेट की जा रही है, राइट। जहाँ मेमोरी स्पेस खाली होगा, फ्री होगा, दैट वुड बी एलोकेटेड टू प्रोग्राम। सो मल्टी प्रोग्रामिंग नेचर में कई सारे प्रोग्राम्स एक साथ एग्जीक्यूट होते हैं, कई सारी प्रोसेस एक साथ रन होती है, तो किस प्रोसेस को हमें कहाँ मेमोरी देना है, दैट विल बी टेकन केयर बाय द मेमोरी मैनेजर, दैट इज़ नॉट सब्जेक्टेड टू द प्रोग्रामर। सो हम प्रोग्रामर को हम ये नहीं कह सकते कि उसका प्रोग्राम मेमोरी में कहाँ लोड होने वाला है। प्रोग्राम डज नॉट नो इफ़ देयर आर एनी अदर प्रोग्राम्स टेकिंग मेमोरी स्पेस। प्रोग्रामर को भी ये बात का अंदाज़ा नहीं होता है कि उसके साथ साथ और कितने प्रोग्राम्स हैं या उसका खुद का प्रोग्राम ने मेमोरी में कहाँ स्पेस लिया हुआ है। इट मस्ट देयरफॉर बी मेमोरी मैनेजर जॉब टू प्लेस प्रोग्राम इनटू मेन मेमोरी, क्योंकि ये जॉब मेमोरी मैनेजर की है। वो जॉब्स को कहाँ पर इस अपने प्रोग्राम को कहाँ पे मेमोरी प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज़ द जॉब ऑफ मेमोरी मैनेजर। व्हेन लोडिंग प्रोग्राम द मेमोरी मैनेजर मस्ट डिटरमाइन, जब भी कोई प्रोग्राम लोड होता है तो मेमोरी मैनेजर ये इस बात का डिटरमाइन करता है, निश्चित करता है वेयर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम शैल बी लोकेटेड इन मेन मेमोरी। मेन मेमोरी का कौन कौन सा पोर्शन खाली है और प्रोग्राम का कौन सा पार्ट प्राइमरी मेमोरी में किस लोकेशन पर जाएगा, राइट। सो दैट इज डिटरमाइंड बाय द मेमोरी मैनेजर एट द टाइम ऑफ loading the programs. Okay, this is called relocation. It is also possible that at the time of loading the programs, after some time we have to relocate our programs, क्योंकि एक समय पर एक प्रोसेस का कंप्लीट एग्जीक्यूशन हो ऐसा भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम के पास ऐसी ऐसी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स है जिससे नॉन प्रिमिटिव कैटेगरी और प्रिमिटिव कैटेगरी होती है। तो प्रिमिटिव के केस में यदि कोई हाई प्रायोरिटी की प्रोसेस आती है तो उसे उसी समय रिलोकेट करना होगा, राइट। इसलिए यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि किसी भी प्रोग्रामर की प्रोग्राम्स की मेमोरी कब किस समय किस लोकेशन पर वो बिलोंग करेगा कुछ नहीं कह सकते, राइट। रिलोकेशन, दैट इज रिलोकेशन। फिफ्थ इज लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। Programs are often organized in modules. Some of these modules could be shared between different programs. Some are read only and some contain data that can be modified. Okay, the memory management is responsible. The memory management is responsible for handling this logical organization, that is different from the physical linear address space. One way to arrange this organization is segmentation.
Logical organization, that means programs are often organized in modules. हम जानते हैं कि हमारा प्रोग्राम्स हमेशा एक मॉड्यूल में ऑर्गेनाइज्ड होता है. Some of these modules could be shared between different programs, और यही मॉड्यूल्स किसी अलग अलग प्रोग्राम्स में शेयर भी होते हैं. Some are read only, कुछ मॉड्यूल्स रीड ओनली होते हैं, we cannot write. And some contain data that can be modified, और कुछ मॉड्यूल पर हम चेंज कर सकते हैं डेटा. जो रीड ओनली होंगे उसे हम केवल रीड कर सकते हैं, जो राइट ओनली होंगे उसे हम रीड और राइट दोनों कर सकते हैं. द मेमोरी मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग दिस लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन. मेमोरी मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है इस टाइप के लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को हैंडल करने के लिए. दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द फिजिकल लीनियर एड्रेस स्पेस, जो कि इस फिजिकल लीनियर एड्रेस से बड़ा डिफरेंट होता है. हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे सेगमेंटेशन. यहाँ पर एक एग्जांपल है कि यदि हम हार्ड डिस्क में को सेगमेंट बना दिया जाए, कि हार्ड डिस्क की मेमोरी को हम डिवाइड कर दे जाए सेगमेंट में, सेगमेंट 1, सेगमेंट 2, सेगमेंट 3, सेगमेंट 4, टोटल n नंबर ऑफ सेगमेंट्स वी कैन हैव. सभी सेगमेंट का एक प्रॉपर एड्रेस, और उस सेगमेंट के अंदर कई सारे पेजेस बिलोंग करेंगे, और उन पेजेस के अंदर हमारा डेटा रहेगा जिसे हम प्रोग्राम कहते हैं. ओके, सो सेगमेंट का ऑर्गेनाइजेशन, दैट मीन्स किस तरह से फाइल्स और फोल्डर्स और डायरेक्टरीज हमारे हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर होती है, किस तरह सेगमेंट बनाकर वो स्टोर होती है, और ऐसे कई सारे लॉजिकल सेगमेंट्स हार्ड डिस्क में स्टोर होते हैं. ओके, तो उसी के लिए बोला हुआ है लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन. राइट, प्रोग्राम्स आर ऑफन ऑर्गेनाइज्ड इन मॉड्यूल्स. सम ऑफ दीज मॉड्यूल्स कुड बी शेयर between different programs, and some are read only and some contain data that can be modified. The memory management is responsible for handling logical organization that is different from the physical linear address space. The one way to arrange this organization is segmentation. इस तरह से हम organization manage कर सकते हैं linear way. Okay, last is 6, physical organization. Means memory is usually divided into fast primary storage and slow secondary storage. Memory management in the operating system handles moving information between two levels of memory. Physical organization so memory is divided into two parts. First is fast primary storage, that means we are talking about the primary memory, and the second very slow part, which is secondary storage. Memory management in the operating system handles moving information between two levels of memory. या तो इन्फॉर्मेशन प्राइमरी मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में स्वैप होगी, ट्रांसफ़र होगी, या सेकेंडरी मेमोरी से फिजिकल मेमोरी, दैट इज़ प्राइमरी मेमोरी. तो यहाँ पर फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन इन टर्म्स ऑफ फिजिकली द डेटा कैन बी ट्रांसफर बिटवीन टू काइंड ऑफ मेमोरी. फर्स्ट इज फास्ट प्राइमरी मेमोरी और सेकेंड इज सेकेंडरी स्टोरेज. So that is the requirements of memory management and the parameters which is essential while we are study on memory.
Okay, so this is memory management requirements. And why we need memory? We want transparency, we want protection, we want sharing, we want relocation and logical organization and physical organization. इतनी टास्क है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज करना होता है, इसलिए हमें मेमोरी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। यदि मेमोरी प्रॉपर ना हो, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स ना हो, तो हम ट्रांसपेरेंसी नहीं रख सकते, हम मेमोरी में प्रोटेक्शन नहीं रख सकते, हम डेटा की शेयरिंग नहीं कर सकते, मेमोरी की शेयरिंग नहीं कर सकते कई प्रोसेस के बीच में, प्रोसेस में मेमोरी का एलोकेशन नहीं कर सकते, रीएलोकेशन नहीं कर सकते, लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना सकते और मेमोरी का फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना सकते। राइट, ये सभी पैरामीटर को यदि हमें अचीव करना है तो हमें एक प्रॉपर मेमोरी मैनेजमेंट करना होगा। ओके, in the next lecture we will discuss on memory allocation techniques. Thank you.